So hello and welcome back to my channel. Today we are going to discuss the essay of Virginia Woolf, A Room of One's Own. So let us start the essay. So before discussing this essay, let me tell you Virginia Woolf gave two lectures in the two colleges. First was Newnham College and second was Girton College. So now let us read the summary. Virginia Woolf, giving a lecture on women and fiction, tells her audience that she is not sure if the topic should be what women are like, the fiction women write, the fiction written about women, or a combination of the three. Means here Virginia Woolf is giving a lecture and she is telling to her audience that I am not confirmed or I can't say that I am going to, my topic is on women or how the women write their fiction, ठीक है. And she is telling that the main topic of her this lecture is women must have money, they should have a room and they should write fiction. She says she will use a fictional narrator whom she calls Mary Batten as her alter ego to relate how her thoughts on the lecture mingled with her daily life. तो वर्जीनिया वुल्फ जो है वो अपने इस ऐसे में एक फिक्शनल नरेटर को ले रही हैं जिसका नाम है मैरी बैटन और वो वर्जीनिया वुल्फ के थॉट्स को रिलेट कर पाएगी, ठीक है, और वो बताएगी कि किस तरीके वुमेंस जो हैं वो क्या क्या फेस करती हैं. A week ago, the narrator crosses the lawn at the fictional Oxbridge University, tries to enter the library and passes by the chapel. She is intercepted at each station and reminded that women are not allowed to do such things without accompanying men. ठीक है, तो ये जो नरेटर होती हैं मतलब मैरी बैटन, वो क्या करती हैं, वो ऑक्सब्रिज यूनिवर्सिटी से जा रही होती हैं, ठीक है, और उनको लाइब्रेरी में जाना होता है, ठीक है, लेकिन लाइब्रेरी में उनको कुछ लोग जो हैं मना कर देते हैं और जब वो कुछ स्टेशंस में जाती हैं तो उनको ऐसा याद दिलाया जाता है कि आप मतलब अपने मैन के साथ आइए, ठीक है. अब इसके आगे क्या होता है, शी गोज़ टू लंच वेयर द एक्सीलेंट फूड एंड रिलैक्सिंग एटमोसफेयर मेक फॉर गुड कन्वर्सेशन. तो वो आगे लंच करने के लिए जाती हैं और वो मतलब अच्छा खाना खाती हैं, अच्छा एटमोसफेयर होता है वहाँ का और अच्छी बातें चल रही होती हैं. She has a mediocre dinner. She later talks with a friend of hers, Mary Satin, about how men's colleges were funded by kings and independently wealthy men. तो अब क्या होता है, जो मैरी बैटन होती हैं वो मैरी सैटन से मिलती हैं और दोनों के बीच में बात हो रही होती है, दोनों फ्रेंड्स होते हैं. तो मैरी बैटन जो है वो कहती हैं कि किस तरीके से मेल्स कॉलेजेस को फ़ंड दिया जाता था किंग्स के द्वारा और हम फीमेल्स कॉलेजेस को बिल्कुल भी फ़ंड नहीं दिया जाता है, बिल्कुल भी मतलब उसको ध्यान नहीं दिया जाता है. Satin denounces their mother and their sex for being impoverished and leaving their daughters so little. Had they been independently wealthy, perhaps they could have founded fellowship and secured similar luxuries. इसका मतलब ये गाइस कि जो सैटन है वो कहती है कि कितना गलत है कि हमारी जो मदर्स हैं, ठीक है, उनको मतलब कमाना पड़ता है, ठीक है, और उनके लिए कोई भी मतलब सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं होता है, ठीक है. However, the narrators realizes the obstacle they faced. The internship is at odds with the child rearing. At only last 40 years have women even been allowed to keep money they earned. सो मैरी बैटन जो हैं वो कह रही हैं कि वुमेंस जो थी उनको मतलब पहली चीज़ तो उनको ना ही कमाने दिया जाता था और ना ही उनको पैसा रखने दिया जाता था, ठीक है. The narrator thinks about the effects of wealth and poverty on the mind, about the prosperity of males and the poverty of females, and about the effects of tradition or lack of tradition on the writer. Means here they are talking about wealth and poverty and they are concluding with the poverty and wealth that poverty is for the females and wealth is for males, ठीक है, because it is a dominating society और मेल्स जो हैं वो ज़्यादा कंट्रोल उनका रहता है सोसाइटी में, ठीक है. Searching for answers, the narrator explores the British Museum in London. She finds that there are countless books written about women by men. तो अब इन आंसर्स को वो सर्च करने के लिए कि क्यों जो मेल्स हैं उनके लिए पैसा ज़रूरी है और जो फीमेल्स हैं उनको गरीबी में ही रहना पड़ेगा. सर्चिंग फॉर आंसर्स, द नरेटर एक्सप्लोर्स द ब्रिटिश म्यूजियम इन लंदन. शी फाइंड्स दैट देयर आर काउंटलेस बुक्स रिटन अबाउट वुमेन्स बाय मेन.
तो इन आंसर्स को वो ढूंढने के लिए पॉवर्टी और वेल्थ के रिलेटेड तो वो जाती हैं एक ब्रिटिश म्यूज़ियम जो कि लंदन में है, और वहाँ पे वो देखती हैं कि बहुत सारी जो बुक्स होती हैं वो मेंस के द्वारा ही लिखी गई होती हैं, वाइल देयर हार्डली एनी बुक्स बाय वुमेन ऑन मैन। फिर वो देखती हैं कि बहुत कम जो बुक्स हैं वो वुमेन्स ने लिखी है मैन के ऊपर, ठीक है। शी सिलेक्ट्स अ डोजन बुक्स टू ट्राई एंड कम अप विद अ आंसर फॉर वाई वुमेन आर पुअर, ठीक है। अब वो उन बुक्स को पढ़कर ये पता लगाना चाहती हैं कि क्यों वुमेन्स को पुअर माना जाता है। इंस्टेड शी लोकेट्स अ मल्टीपल ऑफ अदर टॉपिक्स एंड अ कॉन्ट्रडिक्टरी एरे ऑफ मेंस ओपिनियंस ऑन वुमेन। उसके बाद वो कहती हैं कि क्यों ऐसा, मतलब मेंस के इतने अच्छे ओपिनियंस क्यों नहीं हैं फीमेल्स को लेकर। वन मेल प्रोफेसर writes about the inferiority of women angers her, and it occurs to her that she has become angry because the professor has written angrily. Had he written dispassionately, she would have paid more attention to his argument and not to him. After her anger dissipates, she wonders why men are so angry if England is a patriarchal society in which they have all power and money. Perhaps holding power produces anger out of fear that others will take one's power. She posits that when men pronounce the inferiority of women, they are really claiming their own superiority. सो इस पैराग्राफ में जो बात हो रही है वो होती है कि जब वो मतलब ब्रिटिश म्यूज़ियम में जाती हैं और वहाँ पे वो देखती हैं कि एक बुक एक प्रोफेसर ने लिखी होती है जिसमें वो बताते हैं कि वुमेन्स जो होती हैं वो काफ़ी वीक होती हैं और काफ़ी इन्फीरियर होती हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा गलत मतलब उस बुक में लिखा गया होता है। तो यहाँ पे जो फिक्शनल नरेटर है मैरी बैटन, उनको इनकी ये सब बातों पर बहुत गुस्सा आता है जो उन्होंने उस बुक पे मेंशन की होती है वुमेन्स के लिए, और उस प्रोफेसर जो है वो मतलब बहुत गलत लिखते हैं। और तो इसी को मतलब फेवर करने के लिए मैरी बैटन जो है वो कहती हैं कि अगर इंग्लैंड एक पैट्रिकल सोसाइटी है और अगर मेंस के पास पावर है, मनी है, तो क्यों वुमेन्स को इतना ज़्यादा डोमिनेट किया जाता है। वुमेन्स को बिल्कुल भी डोमिनेट नहीं करना चाहिए। शी पोजेट्स दैट व्हेन मेन प्रोनाउंस देयर इन्फीरियरिटी ऑफ वुमेन दे आर रियली क्लेमिंग ऑन सुपेरिटी। तो यहाँ पे वो बताती हैं कि अगर वुमेन्स अपने आप को थोड़ा कम समझेंगी तो वो मेंस के द्वारा भी उनको वीक ही माना जाएगा। सो सबसे पहले जो वुमेन्स हैं उनको खुद से स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा और अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा कि वो एक आर्ग्यूमेंट कर सकें या वो बोल सकें, ठीक है। और अगर वो अपने आप को इन्फीरियर मानेंगी तो मेंस तो उनको बिल्कुल ही मेंस तो अपने आप को फिर सुपीरियर ही मानेंगे, ठीक है। द नरेटर इज़ ग्रेटफुल फॉर द इनहेरिटेंस लेफ्ट बाय हर आंट प्रायर टू दैट शी हैड गॉटन बाय on loathsome, slavish, odd jobs available to women before 1918. Now she reasons that since nothing can take away her money and security, she needs to hate, enslave herself to any man. She now feels free to think of things in themselves. She can judge art, for instance, with greater objectivity. तो जो नरेटर हैं वो मतलब बहुत अपने आंट को बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं कि शुक्र है कि उनकी जो आंट हैं मतलब वो उनके साथ रह रही हैं और उनकी लाइफ में अभी कोई मैन नहीं है, नहीं तो उनको भी यही डोमिनेंस जो है वो झेलना पड़ता, ठीक है। So now, the narrator investigates women in Elizabethan England, puzzled why there was no women writers in their fertile literary period. She believes there is a deep connection between living condition and creative works. She reads a history book, learns that women had few rights in the era, and finds no material about women. She imagines what would have happened at Shakespeare and an equally gifted sister named Judith. She outlines the possible course of Shakespeare's life, grammar school, marriage, and work at a theatre in London. His sister, however, was not able to attend school and her family discouraged her from independent study. She was married against her will as a teenager and ran away to London. The men as a theatre denied her the chance to work and learn the craft. Impregnated by a theatrical man, she committed suicide.
अब मैरी बैटन जो हैं वो ये सोचती हैं कि क्यों एलिजाबेथन एज में वुमेंस को क्यों नहीं लिखने दिया जाता था, या वुमेंस जो अपने क्रिएटिव वर्क्स क्यों नहीं दिखा सकती थी। ठीक है, तो उसके लिए वो क्या करती हैं, हिस्ट्री की बुक्स पढ़ती हैं और वहाँ से उनको ये पता चलता है कि वुमेंस के पास तो कोई राइट ही नहीं है लिखने का, और वुमेंस को तो हमेशा वीक माना जाता है। ठीक है, सो मैरी बैटन जो हैं वो एक कैरेक्टर को इमेजिन कर रही हैं, विलियम शेक्सपियर की बहन जूडिथ शेक्सपियर। अब वो ये कह रही हैं कि जूडिथ शेक्सपियर को मतलब पढ़ाई नहीं करने दिया जाता। ठीक है, और फिर उसको ये भी कहा जाता है कि तुम काम भी नहीं कर सकती। ठीक है, तो फिर वो क्या करती है, वो मतलब भाग जाती है अपने घर से और वो चली जाती है लंदन में। अब वहाँ पे क्या होता है, उसका सिडक्शन हो जाता है एक थिएटर में। ठीक है, मैन के द्वारा। ठीक है, सिडक्शन मतलब रेप हो जाता है उसका, और फिर वो क्या करती है, वो सुसाइड कर लेती है। The narrator believes that no wonders of the time would have had such genius, for genius like Shakespeare is not born among laboring, uneducated, servile people. Nevertheless, some kind of genius must have existed among women, then it exists among the working class, although it never translated to paper. The narrator argues that the difficulties of writing, especially the indifference of the world to one's art, are compounded for women who are actively disdained by the male establishment. She says that the mind of the artist must be indecent like Shakespeare, without any obstacles. She argues that the reason we know so little about Shakespeare's mind is because his works filters out his personal grudges and spites and antipathies. His absence of personal protest makes his work free and unimpeded. So इस पैराग्राफ में क्या कहती हैं मैरी बैटन, वो कहती हैं कि अगर विलियम शेक्सपियर भी अनएजुकेटेड होते और अगर उनको भी ना पढ़ाया गया होता तो उनके वर्क्स कैसे लिखे जाते। ठीक है, उनके वर्क्स तो कभी बाहर ही ना आते। अब जबकि उनको पढ़ाया गया है तभी हम लोग उनके वर्क्स को देख पा रहे हैं। ठीक है, तभी उनके जो वर्क्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ़िल्टर हुए हैं, काफ़ी हम लोग उसको पढ़ते हैं। सेम अगर वुमेंस को भी उतनी सुपीरियरिटी दी गई होती लिखने की, तो वो आज ऐसी बहुत सारी औरतें होती जो काफ़ी फेमस होती विलियम शेक्सपियर की तरह।